Yes, students, good morning to all. और we will take chapter number a cup of tea, है ना? Short stories में है cup of tea. It is given on page number 49 by Catherine Mansfield. जो आपके कट हो चुके हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ. तो अब जो है we will conclude the chapter a cup of tea. And it is written by Catherine Mansfield. First of all, we will read about the author. Catherine Mansfield, an outstanding English short story writer of the 20th century, was born in Wellington, New Zealand. She is the author of a number of excellent short stories which deal with human nature and psychology. Her short stories first appeared in Melbourne in 1907, but literary fame came to her in London after the publication of a collection of short stories called In a German Pension. Now about the story. In Cup of Tea by Catherine Mansfield, we have the theme of jealousy, insecurity, materialism, and class snobbery. It is a story of a younger, upper class woman named Rosemary who learns a lesson in materialism. Mansfield succeeds in not only highlighting to the reader how wealthy Rosemary and Philip are, but more importantly, she also managed to highlight how different Rosemary is from others. Rosemary's change of attitude towards Miss Smith after Philip tells her that Miss Smith is pretty is also psychologically remarkable and interesting. It is from Philip's remark that the reader realizes Rosemary's jealous nature. She also appears to be insecure about her own physical appearance. सबसे पहले हम जो है इसके करेक्टर्स की बात करें तो एक कप ऑफ टी में जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं. सबसे फर्स्ट कैरेक्टर इज रोजमेरी फेल. अ सोशली पॉइज्ड रिच मैरिड वुमेन है विथ ए डिवोटेड एंड लविंग हस्बैंड. ठीक है, उनका हस्बैंड है बहुत अच्छा है, उनको प्यार करने वाला. हु हैज़ अ ग्रेट लाइफ स्टाइल. शी इज़ वेल ड्रेस्ड एंड वेल ऑफ विद ऑल द लग्जरी सी डिज़ायर्स फॉर. और हर एक जो सुख संपन्न की चीज़ें उसको चाहिए होती है वो उसको लेके रहती है, और लग्जरियस लाइफ स्टाइल है उसका. हर इंटरेस्ट इज मेनली ऑफ रीडिंग बुक्स, ऑलवेज इंडल्ज एंड अबव all greatly inspired by the characters and their adventurous lives which she comes across in the stories. Her inspirational interest can be judged from the decision she takes when she interacts with a poor soul called Miss Smith by taking her home with a mere thought of it being an adventure for her, recalling the stories of Dostoevsky. Apart from this possession, an insecurity can be sensed in a character. एक्चुअल में इसकी मीटिंग होती है एक मिस स्मिथ से, और दोनों के बीच में ये जो मेन पार्ट है ये चलता है चैप्टर का. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज फिलिप्स फिल, husband of Rosemary. Rosemary, she is married and husband name is Phillips Fell. Is in fact of one of the richest person of his society. He loves his wife devotedly and cares for her a lot. He calls Miss Smithy pretty, much to his wife's chagrin. Just to make her send Miss Smith always away, as she refuses to do so when he asks her in the first place, even though making his wife feel insecure about herself and her beauty. एक्चुअल में यहाँ पे जो है ये दो लेडीज़ कैरेक्टर हैं और एक ये जेम्स फिलिप्स वेल. मिस स्मिथ है, शी इज़ ऑल्सो लेडी, शी इज़ वेरी पुअर. और यहाँ पे जो है उल्टा है कि जो मिसेस रोजमेरी है वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ स्टाइल वाली है. फिलिप्स वेल जो उनके हस्बैंड हैं वो उनको बहुत प्यार करते हैं, बट वो अपनी वाइफ के नेचर को भी जानते हैं कि किस नेचर की है. उन्होंने ये नेचर भी इसका नापा किया, शी इज़ ऑफ जेलियस स्टाइल, क्योंकि वो ज़रा सी मिसेस स्मिथ की तारीफ कर देते हैं कि शी इज़ वेरी प्रेटी, तो उसको जेलियस फील होती है. तो यही चीज़ है. तो वो फिलिप्स फेल जो है एक अच्छा हस्बैंड उसके लिए है. देन मिस स्मिथ, शी इज़ द लीन एंड थिन पुअर गर्ल ऑफ जस्ट द एज ऑफ रोजमेरी. दोनों की लगभग बराबर सी एज है. शी कांट इवन अफोर्ड ए सिंगल कप ऑफ टी, और
जो स्टोरी घूमती है वो भी यही है, कप ऑफ टी के लिए घूमती है, एक चाय का प्याले के लिए। एंड कम्स टू आस्क रोजमरी टू पे हर द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ टी। और उसकी एक इच्छा होती है मिस स्मिथ, क्योंकि गरीब है, दुबली पतली सी लड़की है, स्मार्ट भी है और रोजमेरी के एज के अकॉर्डिंग ही है, बट उसको जो है एक पैसा चाहिए था कि उसको एक कप चाय पीनी है। शी इज़ एन ऑड पर्सन, फ्राइटन एंड कन्फ्यूज। शी इज शॉक्ड व्हेन रोजमेरी आस्क हर टू हैव ए कप ऑफ टी विथ हर एट होम। अब नेचुरल है, कई अपने को चाय पीने की ललक हो और जो है अपने को घर तक ले जाए पैसे देने की बजाय, कोई भी ऐसा होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैं घर तक ले जा रही हूँ चाय पिलाने के लिए। इन मिस्टर फिलिप्स पॉइंट ऑफ व्यू मिस स्मिथ इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड प्रेटी। नाउ एक और कैरेक्टर है इसमें, द शॉपकीपर। और ये शॉपकीपर जो है द ओनर ऑफ ए वेरी ब्यूटीफुल एंटीक ऑर्नामेंट्स शॉप विच इन फैक्ट वॉज वन ऑफ रोजमरीज फेवरेट शॉप, क्योंकि रोजमरी इसकी रेगुलर कस्टमर है और उसके ऑर्नामेंट्स जो है वहीं से मोस्ट ऑफ वो परचेज करती है, क्योंकि उसको एंटीक रखता है वो रोजमरी को दिखाने के हिसाब से हमेशा। कई दुकानदारों की आदत भी होती है ना कि उनका जो रेगुलर कस्टमर होता है उसको वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। He would always be looking forward to have a rosemary at his shop and always saving a lovely piece of art। और उसको खूब बड़ा चढ़ा के दिखाता है वो हर एक पीस। For her only just like he had been saving the eye-catching blue velvet box। और एक नज़र उसके एक जो है एक बॉक्स पे पड़ती है, ब्लू कलर का बॉक्स है, वेलवेट बॉक्स, और वो उसको लेना चाहती है, बट वो बहुत ही कॉस्टली दे रहा था। नाउ A cup of tea analysis. Title of the story. Ki why we have put the cup title. The writer put the title a cup of tea. The plain and ordinary title of the story has the tendency to gravitate readers towards it, as one can wonder what a little so simple can hold inside it. The charm of the story exceeds the imagination of the reader as one comes across the contents of the story. Finally, sketch against the plain title of the story. The title of the story is relatable to the story at the point when a poor girl from the story asks a rich woman to pay her the price of a cup of tea. और ये टाइटल क्यों रखा है इसका, ये इस लेखक ने कि जो है उसको तो एक कप जो है चाय का ही पीना था और वो उसके लिए पैसे मांग रही थी उससे, बट वो उसको घर ले गई और फिर उसको अच्छा नाश्ता वगैरह भी खिलाया, सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए कि मैं किसी के लिए कितना कर सकती हूँ। एक्चुअली में पॉम्प एंड शो वाली बात थी उस लेडी के लिए, रोजमरी के लिए। नेक्स्ट, ए कप ऑफ टी इंट्रोडक्शन। दिस 1922 story Cup of Tea is written by Catherine Mansfield, which holds class consciousness and materialism as its pivot point. Strongly well characterized and magnificently portrayed against its plain title, this story remarkably presents crystal clear image of class distinction and once mad fondness towards materialism. It's just the same as the doll's house and the garden party. As a matter of fact, that these stories also reflect upon the same issues of class distinction. Mansfield also tried to reflect upon the noble act of philanthropy and how people fancy this act to the cause of ascension ऑफ देयर मॉरल वैल्यूज़ अमंग देयर सोशल सर्कल। एक्चुअल में यहाँ पे दो सोशल स्टेटस दिखाए गए हैं इस स्टोरी के माध्यम से, रोजमरी और मिस स्मिथ। मिस स्मिथ बिल्कुल लो क्लास फैमिली से है, बिलोंग करती है, और जो रोजमरी है वो बहुत हाई क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। दोनों के स्टेटस में बहुत फ़र्क है और दोनों की जो है थिंकिंग थॉट में भी बहुत फ़र्क है, और दोनों ही जो हैं किस तरह से देखिए इस स्टोरी में जो है एक चाय के प्याले के हिसाब से दोनों के बिहेवियर को कैसे कैरेक्टराइज किया लेखक ने, वो इसमें बताया गया। एक कप ऑफ टी समरी। अब इसकी समरी हम डिस्कस करेंगे। आप चैप्टर इसको रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, लिसिट सिंपल, वेरी सिंपल एंड लिसिट लैंग्वेज इज बिहाइंड दिस चैप्टर। तो आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई एम डिस्कसिंग द समरी। रोजमरी फल, a very rich and well-off woman who has been married for 2 years to a very rich and devoted man, Mr. Phillips Fell, spends her day out shopping at some
west corners of London in the finest of shop. She visits an ingratiating antique dealer shop that shows her a beautiful small blue velvet box. Rosemary, इसके हस्बैंड है मिस्टर फिलिप्स फैल, और 2 साल हो गए इसकी शादी को, बट उसने हमेशा लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी है और एक दुकान से उसका अक्सर लेन देन होता रहता है, वहीं से वो अपने जो है जो भी इसको चीज़ लेना होता है वो लेती है। अब उसकी एक नज़र कहाँ टिक जाती है कि स्मॉल ब्लू वेलवेट बॉक्स में। रोजमेरी इज टेकन बाय द ब्यूटी ऑफ द क्रीमी पीस ऑफ आर्ट बट डिसाइड नॉट टू बाई इट एंड आस्क द शॉपकीपर टू सेव इट फॉर हर। जैसा होता है ना, दुकानदार अगर रेगुलर कस्टमर हो तो कह देता है कि भाई उसको कह दे कि हाँ हमारे लिए रखना, हम लेंगे ये, तो रख दिया उसने। आउट शी कम्स फ्रॉम द शॉप, जैसे शॉप से बाहर आती इन टू द रेन एंड एज शी रीचेज टुवर्ड्स द कार अ गर्ल अप्रोचेज हर आस्किंग हर टू पे फॉर द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ टी। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। एस्टॉनिश्ड रोजमेरी आस्क्ड द गर्ल टू कम होम विथ हर फॉर टी, फाइंडिंग इट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एडवेंचर एंड एक्सपीरियंस, कि हाँ कुछ तो इसमें नया मुझे मिलेगा। देखो उसकी थिंकिंग सिर्फ क्या थी, उसको घर ले जाके चाय पिलाने की, कि कुछ तो जो है मेरे को एडवेंचरस और एक्सपीरियंस वाला मिलेगा। जस्ट लाइक शी रीड्स इन बुक्स एंड स्टोरीज ऑफ डॉस्टोयेव्स्की, क्योंकि अक्सर वो बुक्स और स्टोरी रीड करने का उसका शौक था। शी वॉन्ट्स टू शो द गर्ल दैट रिच पीपल डू पजेस मर्सी, और वो गर्ल को ये दिखाना चाहती थी कि जो है क्या होता है कि रिच पीपल जो है मर्सी भी रखते हैं पुअर पीपल के लिए। द गर्ल एग्रीज अपार्ट फ्रॉम हर ग्रेट फियर्स टू राइड विथ रोजमरी इन हर कार। वो तैयार हो गई। एज दे रीच द हाउस रोजमरी टेक्स द पुअर गर्ल टू हर रूम and ask her to sit by the fire. She helps her take off her coat and hat and tries to soothe her. उसको बड़ा कंफर्टेबल महसूस कराया उसने, उसको जो है आग के पास ले जाके बैठा दिया, उसका कोट और हैट उतारा, ठीक है, और बिल्कुल उसको रिलैक्स्ड होने के लिए कहा। Tries to proceed further. The girl cries out that she can't stand any more, fearing that she will faint out of hunger. रोजमरी हर्रिडली ऑर्डर्स टी, और इसने जब ये माहौल बनाया काफ़ी टाइम भी लगाया, पर उस लड़की को तो क्या चाहिए था, उसको तो भूख लग रही थी, उसको एक कप जो है चाय चाहिए थी बस, और वो बार बार उसको कह भी रही थी कि मुझे तो चाय पिला दो, मेरे को एक कप चाय चाहिए। द गर्ल इज प्रोवाइडेड विथ टी एंड सैंडविचेस, में चाय के साथ सैंडविचेस भी आए। while Rosemary lights a cigarette. Keen to know the story of the girl, Rosemary starts up a conversation with her which is unintentionally interrupted by her husband. दोनों आपस में बातचीत कर ही रही थी, वो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना मांग रही, जितने में हस्बैंड एंटर। ही इज सरप्राइज टू सी द स्ट्रेंजर इन द रूम। अब वो बड़े पहुंच के सीधा रूम तक आ गए उसको लेके, एंड आस्क्ड हिज वाइफ टू टॉक हिम टू प्राइवेटली, और अब उसने बात भी करनी चाहिए कि इस लड़की को वहाँ अंदर तक क्यों लेगी। एज दे एंटर द लाइब्रेरी फिलिस बिगिंस टू इंक्वायर अबाउट द मैटर। टू दिस रोजमरी रिप्लाइज दैट शी इज जस्ट हेल्पिंग द पुअर, और उसका उद्देश्य केवल यही था कि भाई मैं जो है तो हेल्प कर रही हूँ, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आई एम हेल्पिंग द पुअर लेडी whom she picked up from the street. Her husband tries to tell her that she can't have a stranger in the house. फिर से आप वही होता ही, अजनबियों को घर में ऐसा नहीं लाया जाता, और वो भी बेडरूम तक। Facing her refusal, Phillips points out that the lady is remarkably pretty, giving a rise to insecurities of Rosemary. और उसने ये नोटिस भी किया कि वो अच्छी सुंदर भी है, तो उसने कहा मैं इसी का फ़ायदा उठाऊं ताकि इसको यहाँ से सरका दे, जल्दी से जल्दी निपटा दे। Rosemary leaves the library and enters the study room, from where she picks up some cash. She returns to her room and hands over the money to the poor girl, making her leave the house. फिर उसने उसको चाय भी पिलाई, नाश्ता भी कराया, फिर उसको कुछ पैसे भी दिए उसने, और फिर वो घर छोड़ जाने के लिए उसको कहा। After the girls leaves the house, Rosemary joins Phyllis back in the library and asks him if she can buy the velvet box. देखो कैसे सिंपैथी का फ़ायदा उठाया उसने कि हाँ मैं इससे जो है मेरे हस्बैंड की नज़रों में चढ़ गई, और उसने फिर फट से डिमांड कर दी उस रेड वेलवेट बॉक्स की, which isn't what the she wishes to ask. After a pause she whispers, am I pretty? क्योंकि वो ये बोल चुका था उसकी वाइफ को, वैसे ही वो सुंदर बहुत है ना। तो अब उसको जेलेसी हुई, जेलेसी की वजह उसने फटाफट उसको रफा दफा कर दिया, उसको रवाना कर दिया कि ये लो पैसे और जाओ। और फिर उसको जो है कि हाँ मेरे को तो वो वेलवेट बॉक्स चाहिए, फ्लेटरिंग करने लगी उसके साथ।
और फिर उससे जेलिसी के मारे उसने ये भी लिया कि भाई मैं भी तो प्रीति हूँ। राइजिंग एक्शन कैन बी ऑब्जर्व व्हेन रोजमेरी डिसाइड टू टेक द पुअर गर्ल होम विद हर। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात इस चैप्टर में ये देखने को मिली शॉर्ट स्टोरी में कि वो अपने घर ले जाने को, एक चाय का प्याला पिलाने के लिए जो है उसको घर ले जाने को तैयार हो गई। स्टोरी रीचेज इट्स क्लाइमेक्स व्हेन दे रीच होम एंड द गर्ल इज सर्व्ड विद टी एंड देन बोथ द लेडीज आर इंटरप्टेड बाय द अराइवल ऑफ फिलिप्स। क्लाइमेक्स हुआ, भाई चाय भी पी ली, उन्हें नाश्ता भी कर लिया, दोनों बातें भी कर रहे थे और उसका हस्बैंड पहुंच गए। फॉलोइंग एक्शन टेक्स प्लेन व्हेन रोजमरी वॉक्स टू द लाइब्रेरी विद फिलिप। और धक्का तो उसको कहाँ लगा रोजमरी को, जब उसका हस्बैंड ने उसकी तारीफ करने लगा कि शी इज़ सो प्रिटी, और उसके बाद जो उसको जेलिस फील होने लगी, इसको यहाँ से भगाओ जल्दी, उतने में ही भलाई है। देयर इज़ अ ट्विस्ट इन ए प्लॉट एट द टाइम ऑफ फिलिप्स कन्फेशन about the beauty of Miss Smith resulting in the change of Rosemary's attitude towards the guy। और यहाँ पे तुरंत रोजमरी का जो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। The story ends with a doubtful question raised by Rosemary regarding her beauty. A cup of tea themes. The main theme of the story is class distinction and materialism। तो इस चैप्टर में जो है कुल मिला के मेन थीम यही है कि क्लास डिस्टिंक्शन, कि दो क्लास के जो गर्ल्स हैं, एक अपर क्लास की एक लोअर क्लास की है, उनके बारे में बताया गया है, उनकी सोच क्या होती है, उनका जो है वो मतलब उनका लाइफ स्टाइल कैसे क्या होता है, उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह से इनके जो है दो क्लास का जो है यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। दिस स्टोरी पिक्चर्स द डिफरेंशियल बिहेवियर ऑफ द अपर क्लास टुवर्ड्स द लोअर क्लास through the character of Rosemary. Her attitude and behavior gives quite a clear image of mentality possessed by discriminating elites. Materialism is rigidly followed by the upper class. क्योंकि जो अपर क्लास वाले लोग होते हैं वो भौतिकतावाद में बहुत विश्वास करते हैं, दिखावे में, पॉम्प एंड शो में, और वही जो है रोजमेरी में भी बात थी। द मोर दे हैव द मोर, और सिर्फ उस लड़की को तो क्या चाहिए था, उसको तो भूख लग रही थी, उसको तो उसने खूब उसको ये दिखाया वो दिखाया कि हाँ मैं कितना मर्सी करती हूँ, मैं बहुत हूँ, पर उसको तो सिर्फ एक चाय का प्याला पीना था अपनी भूख मिटाने के लिए। द मोर दे हैव द मोर दे वॉन्ट एंड दो डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑर्डनरी बट दे वॉन्ट द बेस्ट ऑफ ऑल। और यहाँ रोजमेरी के करेक्टर से ये सिद्ध होता है कि वो जो है अच्छे से अच्छा, हमेशा अच्छे से अच्छा जो है लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करती थी, अच्छे से अच्छा उसके पास हो। अनअफोर्डेबल बाय द कॉमर्स, दे वॉन्ट फॉर मोर नेवर डाइज। द वेलवेट बॉक्स इन द स्टोरी सिम्बलाइज मेटरलिज्म वाइल द कप ऑफ टी सिम्बलाइज द इक्वल नीड्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सिम्बलाइज किया है वेलवेट बॉक्स, अच्छा किसके पास होगा, जो बहुत पैसे वाला होगा, और कप ऑफ टी बिल्कुल नॉर्मल, द इक्वल नीड्स, तो यहाँ पे एक सिम्बोलाइजेशन नहीं है, एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिच एंड द पुअर। सो स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इट इज अ समरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड वेल। नाउ वी विल लीव द क्लास, till then goodbye।